First of all, a really pleasant good morning, good afternoon, or good evening whenever you are watching this video. Welcome to Terra Genesis classes. So, ये हम लोग पहुंच गए हैं हिस्ट्री के तीसरे और फाइनल वीडियो पे. चैप्टर नंबर 1 क्लास 6th, that is Mesopotamian civilization. Yes, it is the civilization which we call as the cradle of many civilizations or many groups like Assyrians, Babylonia, Akkad, and one more. In last video, we learned about family, how the family was at the time of Mesopotamia, how was the town planning, architecture, society, and what is civilization basically. In this video we'll start off with occupation. So what I did is just take the picture of the book, of the paragraph, and crop it down till here because I don't want to miss any part of the book, right? We will read each and every line from the book. So take a copy, take a pen with you, make notes if you want, or just listen carefully. Agriculture and trade were two major economic activities. Which were the two major economic activities? Agriculture and trade. Sufficient food supply also encouraged the growth of the number of crafts. So the sufficient food supply here indicates that there were sufficient resources for making sufficient goods, so that which they can transport, trade, or earn with. The Mesopotamian artisans showed advanced skill in pottery, weaving, and metallurgy. In Mesopotamian times, the artisans, according to that time, were very advanced in skills of pottery, weaving, and metallurgy. Just in case जिसको नहीं पता pottery, weaving, metallurgy क्या है. pottery मड से pots बनाने की कला, weaving आपका गूंथने और सिलने और कढ़ाई करने की कला, metallurgy extracting metal from mineral ore, right? So I hope this part of the occupation is clear. Now let's jump to the agriculture and animal husbandry. Okay. Agriculture. Situated between the Tigris-Euphrates river, Mesopotamia was a piece of very fertile land. Now what this line indicates is, like I've told you in early video, the last video which I've made, that the location of Mesopotamian civilization was between the two rivers, which was Tigris and Euphrates. Remember the spellings, because when you write in your exam Euphrates, it shouldn't be wrong, because that will make you lose marks. Situated between Tigris and Euphrates rivers, Mesopotamia was a piece of very fertile land, which means जो मिट्टी थी वहाँ की बहुत उपजाऊ थी. However, agriculture here was heavily dependent on the flood, and the flooding of those river was irregular. मतलब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट था? वो डिपेंडेंट था फ्लडिंग ऑफ द रिवर्स. विच रिवर्स? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. लेकिन ये फ्लडिंग कैसी थी? इरेगुलर थी. द मेसोपोटामियंस डेवलप्ड एंड एलैबोरेटेड पेरिनियल method, or you can say perennial irrigation system to overcome this problem. इन्होंने एक पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम बनाया, राइट? पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है? रिवर से इन्होंने कट्स बनाए खेतों की तरफ अपने, ताकि वहाँ से फ्लडेड एक्स्ट्रा पानी जो है डायरेक्ट खेतों में जा सके. वेयर एज दे मेक डाइक्स टू कंट्रोल दी अनटाइमली फ्लडिंग. मतलब बेहिसाब फ्लडिंग जो है उसको रोकने के लिए, जो अनियमित रूप से हो रही है, मतलब जिसका कोई टाइम नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रोकने के लिए इन्होंने डाइक्स बनाए. डाइक्स आर द एम्बैंकमेंट्स विच स्टॉप्स वाटर. Now the Mesopotamians are
credited with number of important inventions in the field of agriculture. Most important among them were the ox drawn plow. यहाँ पर जो ये ऑक्स ड्रॉन प्लो है, ये आपने बहुत दफ़ा देखा भी होगा. जैसे एक बैल होता है, बैल के पीछे हल है, उसको हाँकने वाला एक आदमी है. तो ये इस मैकेनिज़्म का इन्वेंशन मेसोपोटामिया के समय का माना गया है. और जो व्हील्ड कार्ट है, मतलब व्हील तो बहुत पहले डिस्कवर किया गया था, बट व्हील्ड कार्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ उसका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ट्रेस किया गया है. The use of ox-drawn plow ensured the increase in agriculture production, while wheeled carts made the transportation of the crops easier. Now, a fair point it's there. Like जो ox-drawn plow है, उसका क्या फ़ायदा हुआ इनको फ़ायदा हुआ कि इनका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया. और जो व्हील्ड कार्ट थी, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी ईजी हो गया. एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि ये दे डोमेस्टिकेटेड cows, goats and sheep and donkey for the purpose like wool, milk and lot more things. Animal husbandry was also an important occupation. Now, which peoples? Sumerian people. Most of the time Sumerian people were indulged in these kind of animal husbandry, whereas historians are of the opinion that wheat was first cultivated in ancient Mesopotamia. अब कुछ हिस्टोरियंस यहाँ पर हैं जो ये कहते हैं कि सबसे पहले गेहूं की जो खेती थी वो मेसोपोटामिया में हुई. Other crops included barley, pulses, sesame, vegetables, fruits and flax भी वहीं पर हुए. बट ये बहुत डिस्प्यूटेड है क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ही पुरानी जाती है. मोर देन 5000 ईयर्स अगो की हिस्ट्री है हमारी. तो नथिंग कैन बी सो सर्टेन, राइट. हम अब आते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे. The ancient Mesopotamians are believed to be the pioneer in the use of potter's wheel. जो पॉटर्स व्हील था, आपने देखा होगा, जो पहिया घूमता है और जिस पर मटके बनते हैं, वही पॉटर्स व्हील होता है. इन्होंने उसको मास्टर कर रखा था. दे ऑल्सो रीच्ड एन एडवांस स्टेज इन मेटलर्जी. उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के जो उनके पास रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे, रिसोर्सेज अवेलेबल थे और जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उस हिसाब से दे वर वेरी एडवांस. Mentally they were very advanced in metallurgy and in pottery. The abundance of the metal object and silver and the gold ornament among the remain found in the Mesopotamian town bear witness to this. अब excavation के समय इन लोगों को, historians को क्या मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला कि there were silver ornaments, gold ornaments, objects made up of different metals which are very expensive these days. इसका मतलब उन्होंने वो टेक्निक ढूंढ ली थी जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करके उससे ऑर्नामेंट्स बनाया जाए, राइट. दे एनग्रेव्ड सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी एज वेल. उन्होंने सील्स बनाई, राइट. उन्होंने इससे सील बनाई. अभी सील जो है हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये सील्स आएंगी. विद फॉर डिफरेंट पर्पस डिफरेंट सील्स वर यूज्ड. तो इसको बनाने के लिए भी मेटल से एक अलग टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होनी चाहिए जो उस टाइम के लोगों ने एक्वायर की थी, राइट. अब पहुंचते हैं हम लोग ट्रेड और कॉमर्स पे. ट्रेड और कॉमर्स पे आने से पहले यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दूँ दैट the engraved cylindrical seals of Mesopotamia required advanced technology as well as artistic skills, right. अब एक और चीज़ है इसमें, relief on the walls and pieces of sculpture speak the exceptional skill attained by Mesopotamian artisans. उन्होंने केवल सील्स या डिफरेंट पॉट्स ही नहीं बनाए थे, उन्होंने कार्विंग की थी which was very accurate, and that is one more witness that how much advanced they were,
हालांकि सिचुएशन एकदम ऑपोजिट भी हो सकती है, आपको पता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हमें कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं पता होता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता कि जो एविडेंसेस हमें मिल रहे होते हैं वो कंप्लीट भी होते हैं कि नहीं। हो सकता है कि जितने एविडेंसेस हमें मिले हो किसी चीज़ पे, वो सिर्फ एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा पार्ट हो, एंड द बिगर पिक्चर कैन ऑल्टर इंटायर परसेप्शन ऑफ द हिस्ट्री। सो नो वन नोज़। तो इसीलिए हम जो बुक में लिखा है उसी हिसाब से जाएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स। The advancement in agriculture ensured surplus food grain in ancient Mesopotamia। वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से जो एडवांसमेंट था इनके एग्रीकल्चर का, उसने सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन इंश्योर कर दिया। These food grains and finished product were traded in exchange of stones, timber and metal ores। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि सबसे पहले क्या हुआ, इनके एडवांसमेंट ने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या कर दिया, सरप्लस कर दिया। राइट, सरप्लस मीन्स वेरी एडिक्वेट अमाउंट, मोर देन एडिक्वेट अमाउंट। अब उन्होंने इसको बेचना शुरू किया, किसके एक्सचेंज में, स्टोन्स, वेरी एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस स्टोन्स, टिम्बर एंड मेटल ओर्स। टिम्बर यानी वुड है यहाँ पर। The Mesopotamians conducted overseas trade with other region. They established trade relations with the Mediterranean region, Egypt, Indus Valley. मतलब मेसोपोटामियंस इतने आगे निकल चुके थे अपने समय से कि जो ओवरसीज ट्रेड थी इन्होंने दूसरे रीजन से भी स्टार्ट कर दी। इन्होंने इजिप्ट से रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक अपने छाप छोड़ी थी। सुमेरियन सील हैव बीन फाउंड इन मेनी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब आप समझ रहे कनेक्शन कि जो सील्स मेसोपोटामिया में बन रही हैं मिडिल ईस्ट में, वो इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिल रही हैं। यानी देयर इज कनेक्शन बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन विद लिंक टू द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशंस बहुत बनी हैं, बहुत आई हैं, एंड दे वर यूनाइटेड एज अ वर्ल्ड, बट दे कैन नॉट डिफीट what it's already written. You cannot avoid what inevitable, which cannot be avoided. फॉल बैक सबका होना है, हमारा भी होगा इन सिविलाइजेशंस का जैसे हुआ, इतना एडवांस होने के बाद भी उस टाइम के हिसाब से। So Sumerian seals have been found in many sites of the Indus Valley civilizations. Calyx, right? Calyx were yacht-like vessels. कैलेक्स क्या थे, याच-लाइक वेसल्स थे, वर यूज्ड फॉर मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड के लिए याच-लाइक सील्स कैलेक्स यूज़ किए जाते थे। म्यूचुअल कमर्शियल रिलेशंस एग्जिस्टेड अमंग द टाउन। टू व्हील्ड कार्ट्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय लैंड। जो म्यूचुअल कमर्शियल रिलेशन था, मतलब अब इस वर्ड का मतलब समझिए, म्यूचुअल कमर्शियल रिलेशन। कॉमर्स मतलब यहाँ पर आपका आ गया इकोनॉमिक फैक्टर, और म्यूचुअल मतलब बेनिफिट और लॉस दोनों साइड से है, और ये एक रिलेशन में चल रहा है। ये टाउन्स के बीच में होता है, जैसे आज हम स्टेट्स के बीच में देखते हैं ना कि यूपी से कोई चीज़ दिल्ली जा रही है, दिल्ली से कोई चीज़ यूपी आ रही है, सर्विस टैक्सेस अलग है, इंपोर्ट टैक्सेस अलग है। बाहर से कोई चीज़, ओवरसीज से कोई चीज़ आ रही तो उसके लिए टैक्सेस अलग है, राइट। तो यहाँ जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों साइड पे हो रहा है। सेम हेयर उस टाइम में भी म्यूचुअल कमर्शियल रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे, बट टाउन्स में। व्हील्ड कार्ट वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय लैंड। ज़मीन द्वारा, भूमि द्वारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था, वो किससे हो रहा था, व्हील्ड कार्ट से, जो डिस्कवर किया गया था इसी सिविलाइजेशन में। द मेसोपोटामियंस वर ऑल्सो फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ कीपिंग अकाउंट्स।
सी उस टाइम पे, आई मीन it's about 1,000 years old, and we are talking about the economic commercial relationships mutually bounded, and we are talking about the advanced artistic skills, technology, and keeping accounts. This is something insane. They kept accounts on clay tablets. Wow, that's really insane. क्ले टैबलेट्स में इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स रखना शुरू किए. अब हम इनके आते हैं रिलीजन पे. अब रिलीजन हर जगह की प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है. रिलीजन की जो जड़ें हैं वो इवन पीछे जाती हैं ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस से भी पीछे, तो आप इससे बच नहीं सकते हो. द एंशिएंट मेसोपोटामियंस बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. अब ये जो है ये अलग ही स्टोरी बन जाती है पूरी. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शायद फर्स्ट वीडियो में, कि एवरी सिटी में एक जिगुरत था जो पर्टिकुलर गॉड को डेडिकेटेड था. हम लगभग उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. The ancient Mesopotamians believed in many gods and goddesses. Each town or city had a patron god for whom the ziggurat was built. Yes, as I've told you. मतलब पुराने मेसोपोटामियन में ये माना जाता था कि बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस हैं, और हर एक टाउन के लिए, ईच सिटी एंड टाउन, दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिटी एंड टाउन, पेट्रॉन गॉड था, उनका अपना खुद का गॉड था, जो कि जिसके लिए जैसे हम टेम्पल्स बिल्ड करते हैं, मॉस्क बिल्ड करते हैं, वैसे ही उन्होंने जिगुरत बनाया. सम अदर इम्पॉर्टेंट डाइटीज़ वर एंड लाइक द स्काई गॉड एनलिल जो है सॉरी, ओके सॉरी, इट्स नॉट एन, इट्स अन द स्काई गॉड, Enlil the god of the wind, and the Enki the god of the water. तो आप समझ सकते हैं अन ये है, ये गॉड ऑफ स्काई है. एनलिल थॉर नहीं है ये अन, ठीक है, वो गॉड ऑफ थंडर है. एनलिल जो है ये आपका गॉड ऑफ विंड है, और एनकी जो है ये आपका गॉड ऑफ वाटर है. Let's like Aquaman, but it's not Aquaman. Various elements of nature such as the sun, moon and rain were also worshipped. ये कुछ हिंदुइज्म जैसा नहीं लग रहा है. Like we used to pray different kind of seasons in different kind of phase. We pray trees, we pray animals, and we pray water also sometimes. So it is something like Hinduism. That's deep. Such as sun, moon, rain were also worshipped. Vessels varies articles of daily use. A weapon found in some graves indicate that Mesopotamians probably believed in life after death. Oh, it's getting insane now again. See, वेसल्स उस जिगुरत के पास जहाँ वर्शिप के प्लेसेस थे, वहाँ पर अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स मिले थे, वेसल्स मिले थे जो डेली यूज़ के लिए काम आते हैं, वेपन्स मिले थे. मतलब उन वेसल्स में फूड भी रख सकते थे कोई, राइट. तो उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, जिसको हम लोग आफ्टर लाइफ कहते हैं. अभी जब आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है और इतने सदियों से चला आ रहा है, तो समथिंग मस्ट बी देयर विच आवर ह्यूमन माइंड इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस, बट इट्स समथिंग really enthusiastic. So just do not kill your curiosity just within the books, just enlarge it, right? So without wasting any time, let's get forward. एंशंट मेसोपोटामियन फीमेल डाइटीज़ की फ़ोटो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं. इन्होंने ऐसी ही क्रेविंग की थी वॉल्स पे, टैबलेट्स पे, डिफरेंट क्ले टैबलेट्स पे जो खुदाई करते समय, एक्सकेवेशन के समय मिला था. सो यू कैन सी हाउ प्रिसाइज दे कार्व. इवन they know how the dimensions, how to make the heights equal, which is very insane, because we are talking about the civilizations which is
1,000 years old. Now see, assumingly they know how to trade, they know how to keep an account, they know how to pray God. That's really out of the box thing. अब कुछ लोग को ये नहीं लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, बट आप किताब में पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें हो के ख़त्म हो चुकी हैं. एडवांसमेंट हुआ, बर्थ हुआ, एडवांसमेंट हुआ, डाउनफॉल हुआ, फिर बर्थ हुआ, एडवांसमेंट हुआ, डाउनफॉल हुआ, बट नो बडी ब्लडी केयर्स अबाउट इट. It just happened. An entire civilization took place and then just vanished. That's really insane. The king in ancient Mesopotamia was considered to be the direct representative of the god on earth. जो civilization का राजा था, मेसोपोटामिया का राजा था, उसको माना जाता था क्या? डायरेक्ट मैसेंजर और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. In the early days of this civilization, he was the chief of priest too. जो priest बैठता था उसका भी chief यही थे. Later priests were appointed by the king to look after temple affairs. Priest enjoyed a high status in the society. मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था सोसाइटी किस हिसाब से बटी है. अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. अपर क्लास में किंग्स मैन आते हैं, किंग आता है, प्रीस्ट आते हैं और प्रीस्ट के आदमी आते हैं. मिडिल क्लास में कौन कौन आता है? इनके जो स्किल्ड वर्कर हैं, पॉटरर हैं, आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कॉमन पीपल हैं. और लोअर क्लास में कौन आता है? वो कैप्टिव्स जो कि वॉर के समय मान लीजिए किसी दो सिविलाइजेशन या दो एरिया में वॉर हुई, तो जो साइड जीतती है वो हारने वाले साइड्स के जो कॉमन पीपल होते हैं उनको अपने अंडर ले लेती है ताकि उनको कोई हार्म ना हो, मतलब और नुकसान ना हो उनका. सो दिस इज़ जस्ट अ फेयर वॉर स्ट्रैटेजी. और उनको जो है थर्ड क्लास के कैटेगरी में डाला जाता है, बट दिस इज़ नॉट ह्यूमन, राइट. सो हम नेक्स्ट आते हैं, कंट्रीब्यूशंस देखेंगे. सॉरी फॉर द इमेज, मैं अगली बार से थोड़ा सा और स्लॉपी ना होने का ट्राई करूँगा. कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे. द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन मैनी वेज. नाउ सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. और जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, इवन अ सिंगल स्मॉलेस्ट थिंग हैज़ लेड टू टुडे व्हाट वी आर. मतलब जो भी छोटी से छोटी चीज़ हुई थी पिछले ज़माने में, पिछले समय में, सिविलाइजेशंस में, वो एक एक चीज़ आज हम हैं उसी के बदौलत. तो लेकिन जो हम मेन कंट्रीब्यूशन नापते हैं वो अलग अलग तरीके से. द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, द फर्स्ट यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील, द फर्स्ट कैलेंडर आर सम ऑफ द थिंग्स the ancient Mesopotamians are credited with. अब माना तो ये जाता है कि जो पुराने मेसोपोटामियंस थे उन्होंने ही सब कुछ सबसे पहले डिस्कवर किया था. बट क्या हो कि इससे भी पहले, मेसोपोटामिया से भी पहले कोई सिविलाइजेशन हो जिसने दूसरे सिविलाइजेशन को जन्म दिया और वो उनके पास भी ये सब टेक्निक्स हो जो आगे हायरार्कियली फॉरवर्ड हो गई, और हमको क्योंकि इसके रिमेन्स मिल गए तो हमने ये मान लिया. Anything could happen in history because we do not have enough evidences. Any time or every day you just find it out, you will never get exhausted. It will always keep coming, never ending. History is insane. Now, sorry. Yes. Credited with. So we have done with contributions. Now we are coming here for the signs, right? Just wait a second please. Yes, so there's one slide missing, which is the invention of writing part. Right, so the greatest contribution of a Mesopotamia was probably the invention of writing. हमने पीछे कंट्रीब्यूशन की बात की जिसमें हम राइटिंग्स की बात की हैं, पॉटरिंग्स की बात की. तो जो अगर हम राइटिंग्स की बात करते हैं, द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोपोटामियंस वाज प्रोबेबली द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. दे यूज्ड टू राइट
ऑन क्ले टैबलेट्स यूजिंग स्टाइलस। जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास एक क्ले टैबलेट था, वो स्टाइलस से उस पर कार्व करते थे, उसको सेव कर देते थे। द टैबलेट वॉज देन बेक्ड सन बाय द सन और बर्नट इन द फायर। उसको सुखा देते थे या तो सन में या तो बर्न करके, उसको बर्न इन द सेंस आग नहीं लगा देते थे, वो आग में रख देते थे उसको ताकि वो तप जाए, टाइट हो जाए। द स्क्रिप्ट यूज वॉज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक इन नेचर थी, यानी उनके राइटिंग में पिक्चर्स ज़्यादा थी जो इंडिकेट करती थी सिनारियोस को। दैट इज़ वर्ड्स और फ्रेजेस, राइट। वो उनके लिए वर्ड्स या फ्रेज था। वर रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर्स, उसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करते थे सिम्बल्स की तरह। जो स्क्रिप्ट थी, अब यहाँ से यस लाइक सिम्बल्स, दिस स्क्रिप्ट इज़ नोन एज दी क्यूनेइफॉर्म। अब देखो मुझे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, लेकिन आप स्पेलिंग सही लिखना प्लीज़, राइट। व्हाट्स द स्पेलिंग? CUNEIFORN, cuneiform, so we can say cuneiform. The name is derived from the Latin word cuneus, which means wedge. The pictorial symbol on the ancient Mesopotamian clay tablet were wedge like in shape. देखो ये नाम जो है उन्होंने नहीं दिया, ये नाम हिस्टोरियंस ने दिया है। कहाँ से इंस्पायर होके? उनको सेम चीज़, सेम वर्ड का डिस्क्रिप्शन जो है एक लैटिन वर्ड से मैच करता हुआ मिल गया, जो वो हमेशा की तरह करते रहते हैं हमेशा, तो उन्होंने ये नाम रख दिया क्यूनेफन, ठीक है। बिकॉज उस टाइम की जो लैंग्वेज थी दैट्स हार्ड टू डीकोड। एंशिएंट मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स वर वेज लाइक इन दिस शेप। आप ये टैबलेट्स देख सकते हैं, इस तरीके का था, राइट। सॉरी फॉर दिस। अब आप देख सकते हैं टैबलेट इस तरीके से कार्व किया गया था। सो द क्ले टैबलेट्स वर ट्रीटेड लाइक पेजेस, उनको पेजेस की तरह ट्रीट किया जाता था। सेवरल टैबलेट्स टुगेदर फॉर्म्ड अ बुक, बहुत सारे टैबलेट्स एक साथ बुक बनाते थे। वेरी लॉजिकल। वन सच पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामियन राइटिंग इज द एपिक गिलगमेश। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग नेम। थोड़ा सा इंडियन लग रहा है, बट नहीं, हो सकता है मेरी ही कोई इमेजिनेशन हो। द क्ले टैबलेट्स वर ट्रीटेड लाइक पेजेस, उसको पेजेस की तरह ट्रीट किया जाता था। सेवरल टैबलेट्स टुगेदर फॉर्म अ बुक, अब बुक बनाती है कैसे? बहुत सारे पेजेस से। तो वहाँ जो पेजेस थे वो टैबलेट थे, तो बहुत सारे टैबलेट्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक बुक बना देंगे। वेरी गुड, वेरी लॉजिकल। अब ऐसी एक पॉपुलर बुक थी मेसोपोटामिया के समय में राइटिंग्स में, वो थी गिलगमेश, which comprises 12 incomplete tablets in the Akkadian language. Akkadian language में 12 incomplete tablets मिले थे, right? 12 incomplete tablets. That's insane. गिलगमेश वॉज किंग ऑफ द मेसोपोटामियन सिटी ऑफ द उरुक। जो उरुक सिटी थी वो उसके किंग थे, तो उन्हीं के ऊपर ये बुक थी। हिस्टोरियंस आर ऑफ ओपिनियन दैट दिस एपिक वॉज क्रिएटेड टू टीच वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन। इस किताब को माना गया कि बच्चों को वैल्यूज़ सिखाने के लिए ये किताब यूज़ किया जाती है। अब हम आते हैं साइंस सेक्टर पे। The technological advancement of the Mesopotamian people could be witnessed through their creation of cylindrical seals, their metalwork, and the canal dikes made up of irrigation. They also recorded remarkable achievement in the fields of science and mathematics. जैसे कि पहला कैलेंडर बना दिया उन्होंने, व्हील का भी इन्वेंशन कर दिया। लाइक माना जाता है कि सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द व्हील वाज इन्वेंटेड इन मेसोपोटामिया। द फर्स्ट यूज्ड इन पॉटर्स व्हील वेयर हैव बीन डेटेड टू 3500 BCE, मतलब फर्स्ट AD के 3500 साल पहले। वाओ, मतलब आज का 2000 साल ले लीजिए और 3500 साल इसका ले लीजिए, विच मीन्स 5520। माई गुडनेस। ओके, तो आप समझ गए कि साइंस और डिफरेंट मैथमेटिकल फील्ड में मेसोपोटामियंस पीपल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सो इट्स हेल ऑफ अ सिविलाइजेशन।
not, I am being symbolical, don't just assume that I'm talking about hell, it's just a word from my mouth, right? Some archaeologists believe, हाँ ये हो गया, the system of the dividing an hour into 60 minutes and minutes into 60 seconds was invented by the Mesopotamians. My goodness. The Sumerian also developed the first calendar that had 12 months in a year and 7 days in a week. This was a lunar calendar which was later adopted by some other civilizations. तो भैया यहाँ इन्होंने कह दिया है कि सब कुछ जो है, पूरी मैथ, पूरी टाइम और पूरा कैलेंडर जो है मेसोपोटामिया में ही बना. वेल आई डोंट अग्री बाय 100%, बट जो किताब में लिखा है हम उसको याद कर लेंगे, और सवाल तो पूछना हमारा नेचर है, तो सवाल तो हम पूछेंगे, राइट? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. मैं एक इंटरेस्टिंग वे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें. और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ इसे बनाने में. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना. अब आते हैं आइडिया ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे. सब चीज़ तो ठीक, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तब कोई चीज़ काम कैसे करेगी, है कि नहीं? तो लॉ एंड ऑर्डर आते हैं. एंशिएंट मेसोपोटामिया ऑल्सो हैड अ फर्स्ट एवर रिटन कोड ऑफ लॉज. अब भैया हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं कि सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर भी इसी ज़माने में लिख दिए गए थे. वेरी गुड. इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीइंग ऑफ हम्मुराबी. ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो. HAMMURABI, हम्मुराबी, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ बेबीलोनिया. अब उधर बेबीलोनिया लिखा था, इधर बेबीलोन लिखा हुआ है. हु रूल्ड फ्रॉम 792 BCE टू 1750 BCE. राइट. अब आप ये सोचेंगे कि ये BCE उल्टा क्यों चल रहा है, ये 92 से 50 कैसे पहुंच गया? हाँ, ये ऐसे ही काउंट होता है. ये बहुत किसी डेट से स्टार्ट हुआ होगा, फिर वहाँ से अनुमान लगाया गया होगा कि इतने साल बाद जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो उसको 1 एनो डोमिनी किया गया. राइट. अब ये वहाँ से काउंटडाउन शुरू है. मतलब क्राइस्ट के पैदा होने से 1750 साल पहले और 1792 साल पहले 1792 पे स्टार्टिंग हुई थी, 1750 पे ख़त्म हुआ था, यानी 38 ईयर्स. द कोड कंप्राइजिंग 282 लॉस. वाओ. मतलब सो आई थिंक ये BC और AD वाला क्लियर हो गया ना आपको, कि BC उल्टा चलता है और AD सीधा चलता है. BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एग्जिस्टेड. द कोड कंप्राइज्ड 282 लॉज. कोड्स जो हैं 282 लॉज हैं उसमें. जैसे हमारे में इंडियन पीनल कोड्स होते हैं, IPC होती है, IPC की धारा ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे ही वहाँ पर 282 लॉज थे. वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ लीगल डिसीजंस ऑफ द रूलर. जो लीगल डिसीजंस थे रूलर के, उसका कंपाइलेशन था. कौन था रूलर? हम्मुराबी. वाओ, हेल ऑफ अ नेम. It is a popularly known as Code of Hammurabi. हाँ बिल्कुल. There were civil as well as criminal laws. Civil laws भी थे, criminal laws भी थे. And the punishment for violation were also specified in it. Punishment भी थे. The punishment were harsh and sometimes even cruel, as expected. भाई राजा है तो कोई चीज़ भी कुछ भी कर सकता है, तो punishment were cruel. The purpose of this code was to ensure justice for all. However, critics say the justice was mostly in favor of the rich and powerful. हमेशा की तरह justice जो है हमेशा मोड़ रहता है. Nothing changes by civilization, whatever you say. Decline of the Mesopotamian civilization. हमने इसके लॉ एंड ऑर्डर के देख लिया, साइंस देख लिया. अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. जो भी चीज़ पनपती है उसका अंत सदा लिखा रहता है. Mesopotamian, despite giving birth to many civilizations and vibrant culture, gradually declined and came to an end. मेसोपोटामिया जो है दूसरी नई सिविलाइजेशंस को जन्म देने के बजाय, वाइब्रेंट कल्चर बनाने के बजाय ख़ुद ब खुद ख़त्म होता गया. ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि सडन चेंज इन द कोर्स ऑफ यूफ्रेट्स रिवर की वजह से हो सकता है, जिससे जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो गई
और लोग जो है उस जगह को छोड़ के चले गए। कुछ मानते हैं कि विंड्स और सैंडस्टॉर्म की वजह से वहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स थी उनकी वॉल्स इरोड हो गई। कुछ मानते हैं कि अंदर ही अंदर इंटरनल राइवलरीज चलने लगी, यानी सिविल वॉर, कोल्ड वॉर एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स। Civilization was disturbed to a large extent by many powerful cities that came into being during the period। हो सकता है कुछ cities ऐसी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई जो ओवरटेक करने के चक्कर में बैलेंस खो बैठी और सिविलाइजेशन ख़त्म। कुछ मानते हैं कि फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, दैट कुड बी अनदर मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन, लाइक पर्शियन, ग्रीक्स, प्री इस्लामिक अरब्स must have invaded, plundered Mesopotamia repeatedly, leading to a lots of destruction। तो देखो हमेशा से जो अरब्स ने किया है, जो मिडल ईस्ट के लोगों ने, जो इन्वेडर्स थे, जिस भी जगह पे वो जाते थे वो जगह को लूट के खाली कर देते थे और फिर वहाँ पर राज करते थे। तो यही काम इन्होंने इसके साथ भी किया होगा, राइट। सो दीज आर ऑलवेज थ्योरीज कैसे डिक्लाइन हुआ होगा, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है सब करिए प्लीज़, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट इन दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस